So hello guys and welcome back to my channel. In case you are new here, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from Government Medical College Vadodara under MS University, and I have cleared my NEET 21 with a score of 639 marks. And today the topic of the video is very important because I literally got 375 messages on my Instagram and so many comments on my all YouTube videos about कि हम अब 11th से 12th में जा रहे हैं and my 11th is completely wasted. Maybe either of the reason, maybe you have studied not properly or you have not taken 11th seriously or whatever might be the reason, and now you are going into the 12th standard. You want to clear your NEET in first attempt and how you have to manage your 12th standard along with your 11th standard. So this video is for you all. So today after this video your all the queries will be shut down and you will get a clear idea that how we have to manage our 12th standard along with our 11th standard. And yes, it is possible to clear the NEET in first attempt even if your 11th standard is not yet so good or you have very little knowledge about 11th standard chapter as compared to your 12th standard chapter. So let's get started. So according to me there are three categories of student who because of which their 11th standard is completely wasted. First category of the student will be who have actually not taken their 11th standard seriously. Maybe they are enjoying with their friends, they have not taken their 11th standard seriously, they have not studied actually properly. Maybe they would have known the correct pathway towards their NEET, but still they have not taken seriously. Second will be the student who tried so much, who hard worked so much, that still they are not getting the correct way, the correct guidance for NEET, and that's why they have almost wasted their 11th standard. And I think that I fall into this category because when my 11th standard was going on, I was the one who's constantly like teacher से पूछ रहा हूँ, senior से पूछ रहा हूँ कि कैसे आप लोग ने लाइक मैनेज किया एंड हाउ डिड योर मार्क्स कैसे आ रहे थे. मेरा तो 11th स्टैंडर्ड आधा बीत गया, मेरे अभी भी मार्क्स नहीं आ रहे. स्टिल पूरा 11th स्टैंडर्ड बीत गया पता चलते चलते कि हाउ यू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर नीट एग्जाम. So I personally was coming in this second category. And third category of the student is might be their XYZ board, they don't belong to CBSE board, they may be belonging to ICSE board or any of their state board जो NCERT follow नहीं करते होंगे. They might be following their own state book. So जिसकी वजह से आप लोग का NCERT पे मे भी अच्छा फोकस या अच्छी पकड़ नहीं बन पाई हो. Maybe your 11th standard is very strong in terms of concepts and everything, but in terms of NCERT line by line, your NCERT might be so weak because you all are referring your ICSE books or your state exam books or maybe any other book that you all are referring for your school exams. Now what to do? Like बहुत सारे लोगों का तो 12th अब चालू हो भी गया होगा, कुछ लोग का मे भी एक आध हफ्ते में चालू हो जाएगा सो नाउ व्हाट टू डू. लाइक 11th इज कंप्लीटली फिनिश्ड, 12th चालू हो रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली थिंक दैट स्टार्टिंग के 12th के पहले वीक में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है. टीचर आर नॉट लाइक सो मच कॉन्शियस कि हमें अभी पूरा पोर्शन कंप्लीट कर देना है. एटलीस्ट पूरा अप्रैल तो एक बहुत डिसेंट वे में आपका 12th जाता रहता है. स्टिल आई थिंक मुझे लगता है अभी एक हफ्ता स्टार्टिंग का जो चल रहा है, आपके स्कूल या कोचिंग जो आप अटेंड कर रहे हो उस पर पूरा फोकस रखो. उसके अलावा मुझे लगता है घर पे आपको सेल्फ स्टडी में अभी थोड़ा 11th पे फोकस करना चाहिए. मैं आपको हमेशा कहता हूं कि नीट की प्रिपरेशन कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मत करो कि इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इससे कम क्वेश्चन आते हैं. इस समय जितना कंपटीशन बढ़ गया है, द ओनली वे टू गेट सिलेक्टेड इज टू हैव टू डू ऑल द चैप्टर. देयर इज नो रीजन दैट दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप कैटेगराइजिंग योर चैप्टर्स इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और समथिंग लाइक दैट. आई ऑलवेज टेल कि मेक द लिस्ट ऑफ योर ओन वीक चैप्टर्स और स्ट्रॉन्ग चैप्टर एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम लाइक दैट. तो मैं अभी भी कहता हूं अगर अभी तक आपने लिस्ट नहीं बनाई है, सो डू मेक योर लिस्ट ऑफ वीक चैप्टर, स्ट्रॉन्ग चैप्टर एंड मॉडरेट चैप्टर एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वीक चैप्टर एज सुन एज पॉसिबल. अभी आपका 12th जस्ट चालू हुआ है, यू हैव मे बी इनफ टाइम ऑफ 1 वीक, यू कैन गिव 1 वीक योर टाइम. आपके स्कूल और कोचिंग में जो आपका 12th स्टैंडर्ड चल रहा है वहां पे ध्यान से पढ़ लेंगे तो अभी एक हफ्ते तक तो मुझे नहीं लग रहा आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी. सो कैरी ऑन विद योर 11th स्टैंडर्ड जो भी आपका छोटा है, आपको पर्सनली लग रहा है जो वीक है, एंड जस्ट ट्राई टू मेक देम स्ट्रॉन्ग बाय वॉचिंग यूट्यूब लेक्चर्स. यूट्यूब पे बहुत अच्छे लेक्चर्स है सारे चैप्टर के. देयर इज नो एक्सक्यूज दैट यू डोंट हैव एनी लेक्चर. ऑनलाइन बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर जगह अवेलेबल हैं. तो आप अपना चाहो तो कोई भी चैप्टर जो आपका एकदम खराब है, शायद आपको बिल्कुल नहीं पता, आप उसको 80 to 90% तक अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो बाय डूइंग दीज ऑल थिंग्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट कि अभी 12th स्टैंडर्ड जस्ट चालू है तो यू कैन कंटिन्यू विद योर 11th स्टैंडर्ड. बट व्हाट अबाउट द होल ईयर? जब 12th स्टैंडर्ड एक्चुअली में अब सीरियस 2-3 हफ्ते एक आध हफ्ते बाद जब सीरियसली अच्छे टॉपिक्स चालू हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चालू हो जाएंगे, होमवर्क्स मिलेंगे, कोचिंग वाले MCQs सॉल्व कराना चालू करा देंगे, तब आप अपना 11th कैसे मैनेज कर सकते हैं. सो आई वुड लाइक टू से दैट कि यू हैव टू मैनेज योर 11th. फर्स्ट ऑफ ऑल कीप असाइड योर कंफर्ट जोन टाइम. अब वो टाइम नहीं रहा कि आपको रेस्ट मिलेगा, आपको आपका पर्सनल टाइम हर दिन 1-2 घंटा मिलेगा कि आप कर सको, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना 11th स्टैंडर्ड वेस्ट कर दिया है.
12th स्टैंडर्ड, अगेन बोर्ड्स और नीट दोनों कैसे प्रेशर रहता है, और आपको 11th स्टैंडर्ड भी इसी साल कवर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपना कि आपको हर दिन 1-2 घंटा आपका फ्री टाइम मिले, उसको भूल जाओ। आई रियली थिंक दैट आफ्टर स्कूल, आफ्टर कोचिंग या ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स ऑल्सो, जो भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है ना, डू योर 11th स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में बहुत सारे ऐसे पीरियड होंगे, मे बी इंग्लिश का पीरियड होगा या फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होगा और एनी ऑफ द प्रॉक्सी पीरियड और लाइब्रेरी पीरियड, ये सारे पीरियड्स में आप अपने 11th स्टैंडर्ड को करिए। मेक योर गोल एवरी कि अगर आज मैं स्कूल जाऊँ तो मुझे ये सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं, वेदर इट माइट बी मॉर्फोलॉजी के सिर्फ एग्जाम्पल्स आज मुझे पूरे दिन स्कूल में पढ़ने हैं, या मुझे फिजिक्स के ये 3 चैप्टर के फॉर्मुलाज अच्छे से याद हो जाने चाहिए। दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज योर 11th स्टैंडर्ड अलॉन्ग विद योर 12th स्टैंडर्ड। एंड उसके बाद आप स्कूल से आ रहे हो, तो अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग के आवर्स में तो आपको 11th बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। वो लोग अभी 12th पढ़ा रहे हैं तो उस पर अच्छे से फोकस करिए, सारे क्वेश्चंस अपने वहीं सॉल्व करिए, डाउट्स अपने वहीं खत्म करके आइए। बैकलॉग 12th स्टैंडर्ड का आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो बैकलॉग ऑफ योर एनी 12th स्टैंडर्ड चैप्टर। यू शुड बी हाईली पंक्चुअल विद योर 12th स्टैंडर्ड बिकॉज यू हैव डन दिस मिस्टेक इन 11th स्टैंडर्ड एंड इट इज गोना अफेक्ट योर स्टडी इफ यू आर गोइंग टू बी बैकलॉग विद योर 11th स्टैंडर्ड चैप्टर्स ऑल्सो अगर आप डमी स्कूल वाले बच्चे हो तब तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप में भी अपने हर दिन का 2 घंटा सिर्फ 11th स्टैंडर्ड को या 3 घंटे 11th स्टैंडर्ड को डिवोट कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ यू जो स्कूल स्टूडेंट होते हैं, वो अगर आप हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मारते हो अपने नीट की प्रिपरेशन के लिए, या आपके वीकेंड आते हैं सैटरडे संडे, या उसके अलावा कोई भी स्कूल हॉलीडे आता है, तो प्लीज अपने 11th स्टैंडर्ड को ऐसे ही कवर अप करो। ये मत सोचो मुझे स्कूल कोचिंग सब बंद हो जाए, मुझे 1 हफ्ता कोई समय दे दे, मैं अपना 11th स्टैंडर्ड कर लूँ। वो टाइम गया, वो 11th आपको उसी के लिए मिला था। बट फॉर एनी रीजन, मे बी फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, आपने अपने 11th स्टैंडर्ड बर्बाद कर लिया है। 12th आपको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा अपने 11th स्टैंडर्ड के लिए। आपको जहां जहां टाइम मिल रहा है, यू हैव टू कीप you have to extract that time from your schedule and you have to devote this time to your 11th standard. So I hope you all are clear that during school hours, during your everyday routine, how you have to manage your 11th standard. Now after 1 month there will be summer vacation of about almost 1 month, जो मुझे लगता है सब स्कूल वाले 1 month का देते हैं। That is a golden time that you can devote to your 11th standard, because in 12th standard जस्ट 1 मंथ पूरे अप्रैल मंथ में इतनी पढ़ाई नहीं हुई होगी कि आप पूरा मई सिर्फ 12th ही पढ़ते रह जाओ। बहुत ही मे बी सब सब्जेक्ट के 1-2 या मैक्स 3 चैप्टर ही कंप्लीट होंगे, जो कि आप शायद 1 हफ्ते घर पे अच्छे से शांति से मन लगा के पढ़ लो तो वो सारे चैप्टर आप कवर अप कर सकते हैं। जो भी आपका XYZ प्रोजेक्ट है वो भी आप मैक्स 1 हफ्ता और ले लो यार, वो भी कर सकते हो। उसके बाद भी आपके पास 2 से 3 हफ्ते बचेंगे। एंड दिस इज द गोल्डन टाइम, द कंप्लीट टाइम टू 11th स्टैंडर्ड। इफ यू आर रेडी विद योर लिस्ट, यू आर रेडी विद योर गोल दैट ये चैप्टर है जो मुझे अपने पूरे समर वेकेशन में कंप्लीट करने, देन यू कैन डू इट। फटाफट यूट्यूब लेक्चर्स देखो, 1 या 2 दिन लो, पूरा दिन आपकी छुट्टी रहेगी, 1 या 2 मैक्स दिन लो, वो चैप्टर के रफ नोट्स बनाओ, कंसेप्ट समझो, क्लियर हो जाओ चैप्टर के साथ। अगले 2 दिन के बाद उसके एक ही दिन में सारे क्वेश्चंस कर डालो, जितने कर सकते हो, 200, 300 प्रीवियस ईयर कर सकते हो, DPPs कर सकते हो, आपका कोचिंग मटेरियल है, आप कोई रेफरेंस बुक करते हो, जो भी करते हो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो करो। आई थिंक 3 से 4 दिन में आपका वो हर एक चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ मॉक टेस्ट दैट यू हैव टू गिव इन योर 12th स्टैंडर्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक अच्छे कोचिंग में होगे तो वो लोग तो यही करते हैं कि वो लोग 12th के जो चैप्टर का मॉक टेस्ट ले रहे हैं, इंडिविजुअल चैप्टर वाइज या पार्ट टेस्ट जिसे आप बोलते हैं, उसी में वो लोग 11th के भी चैप्टर्स इंक्लूड करके टेस्ट लेते हैं, ताकि स्टूडेंट्स अपना 11th भी साथ में रिवाइज करते रहे अपने 12th के साथ। लेकिन इन केस आप कोई कोचिंग नहीं जाते या आपके कोचिंग में ऐसा हो रहा है कि सिर्फ 12th के ही चैप्टर्स के टेस्ट हो रहे हैं, वो लोग 11th इंक्लूड नहीं कर रहे, तो आपको 11th के टेस्ट अलग से देने पड़ेंगे। येस, यू हैव टू गिव योर 11th स्टैंडर्ड टेस्ट, क्योंकि आपने मे भी अपने 11th में मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे और ऑब्वियसली आपने वेस्ट किया अपना 11th स्टैंडर्ड, या अगर आपने दिए होंगे तो अब वो 1 साल हो चुका है। यू हैव टू रिवाइज द कंसेप्ट, यू हैव टू कम इनटू दैट जोन। 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स का अगर टेस्ट होगा तो मुझे कैसे मैनेज करना है। तो अगर आपके कोचिंग में वो चीज़ हो रहा है, देन यू आर वेरी लकी, गो विद दैट फ्लो, अपने 12th और 11th दोनों को ऐसे साथ में करते जाओ। और अगर नहीं होता तो प्लीज़ 11th के पार्ट टेस्ट चैप्टर की कहीं से भी टेस्ट सीरीज अरेंज करो, और हर मंथ एक टेस्ट दो। हर मंथ आपका 12th स्टैंडर्ड का एक पार्ट टेस्ट हो ही रहा होगा, उसमें हर मंथ एक 11th स्टैंडर्ड का भी पार्ट टेस्ट दो। और पूरे मंथ का वो पर्टिकुलर चैप्टर्स का आपका गोल होना चाहिए कि जैसे पूरा मंथ आपने फिजिक्स के 3 चैप्टर, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर, बायोलॉजी के 3 चैप्टर, ये 3 आपने जैसे 9 चैप्टर्स एक महीने में सिर्फ 11th स्टैंडर्ड के दिए। सो लाइक दिस आपका हर महीने 9 से 10 चैप्टर 11th स्टैंडर्ड का क्लियर होता जाएगा, विच इज आई थिंक वेरी गुड एज कंपेयर टू अगर आप अपना सिर्फ 12th स्टैंडर्ड पे फोकस करो, 11th स्टैंडर्ड पे फोकस ही नहीं करो। उससे तो बहुत अच्छा है कि आप हर महीने अपना 10 चैप्टर क्लियर करते जा रहे हो। एंड स्लोली एंड स्टडी आपको रियलाइज होगा कि जब तक आपका दिवाली वैकेशन आएगा तब तक आप अपनी 11th स्टैंडर्ड के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे। दिस इज द वे you have to manage your 11th standard. You are not going to get any separate time. I am still saying you
summer vacation is a golden time that you can devote completely to your 11th standard. Just except 1 and 2 week that you should give to your 12th standard, जो भी आपका अप्रैल में अभी तक हुआ है. उसके अलावा मैंने आपको कहा कि कोई भी फ्री टाइम आपको मिल रहा हो, वीकेंड्स मिल रहा हो, हॉलीडे मिल रहा हो, इन दैट टाइम यू हैव टू कवर योर 11th स्टैंडर्ड लाइक दैट. एंड लेट मी अलर्ट यू ऑल कि दिवाली वैकेशन के बाद आपको 11th स्टैंडर्ड करने का शायद ही मौका मिलेगा, क्योंकि मेरा भी ये मिथ था कि मैं शायद अपने बोर्ड्स के सिर्फ 1-2 हफ्ते पहले से या 1 महीने पहले से सिर्फ 12th का पढ़ूंगा. इट्स ओके. लेकिन अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट ना भी हो तो भी दिवाली वेकेशन के बाद प्री बोर्ड्स चालू हो जाते हैं. आपको आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम्स आने लग जाती है, आपको अपनी जर्नल्स कंप्लीट करनी रहती है, आपको अपने नोटबुक सबमिशन अगर होते हैं वो करने रहते हैं. एंड मेरे स्कूल में तो 2-2 बार प्री बोर्ड होता था, तो मुझे दिसंबर भी मेरा आधा पूरा 12th में चला गया, फिर जनवरी भी मेरा पूरा 12th में चला गया क्योंकि प्री बोर्ड था. फेब से मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम चालू हो गए और फेब एंड से मेरे बोर्ड एग्जाम चालू हो गए. तो लिटरली दिसंबर, जनवरी एंड फेब एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मार्च मैंने पूरा 12th स्टैंडर्ड को दिया जस्ट बिकॉज ऑफ माई बोर्ड एग्जाम. मैं 11th बिल्कुल भी रिवाइज नहीं कर पाया था. एंड दैट वॉज अ टाइम दैट आई थॉट कि मुझे शायद ये पता होता कि मुझे 3 महीने 11th करने का बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था, तो मैं शायद अपना दिवाली वेकेशन में 11th को रैप अप कर दिया होता. सो आई एम टेलिंग यू ऑल कि आपका मैक्स जितनी भी कम नॉलेज हो, ट्राई कि आपका दिवाली वैकेशन तक 11th रैप अप हो जाए आपके 12th स्टैंडर्ड के साथ. सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर 11th स्टैंडर्ड अलॉन्ग विद योर 12th स्टैंडर्ड. चाहे आपको टेस्ट सीरीज देनी हो, मैंने वो भी बता दिया आपको कैसे मैनेज करना है. क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, दिवाली वैकेशन हुआ, समर वैकेशन हुआ, ये मैंने आपको कैसे इसमें आप अपना 11th स्टैंडर्ड स्टेबल अप कर सकते हो. और रेगुलर दिनों में भी आप फ्री टाइम जब जब मिल रहा है आप अपना 11th स्टैंडर्ड में डिवोट करो. एंड यू हैव दैट अल्टीमेट डिजायर, द मैडनेस टू क्लियर योर नीट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, to clear your 11th standard with utmost finishing within your 12th standard. You will do it. So just stop giving excuses, stop expecting a separate time that you will get for your 11th standard. आपको 12th standard में ऐसा नहीं मिलने वाला, उसके लिए 11th standard था, आपने कोई रीजन से नहीं शायद यूज कर पाए. इट्स ओके. सो दिस वाज द वीडियो गाइस. होप यू लाइक माय वीडियो. सो इफ यू लाइक माय वीडियो, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टा आईडी गिवन बिलो एंड यू कैन मैसेज मी एनी क्वेरीज. आई विल लव टू रिप्लाई यू ऑल. एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी जितनी भी क्वेरीज हो करना, मैं सबको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा सो दैट माय ऑल द नीट एस्पिरेंट्स प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.